Hello dear students, welcome to Wisdom Corner. Here we will start with 6th standard English chapter 1.3. So Hello here we dear go. students, we will start today with 1.3 autobiography of a great Indian bustard. So let's see what does the first paragraphs and the whole story says about. In this story, when we read about all the chapters, we come to know that the Indian bustard is talking with us. He says, which is the heaviest flying bird in India? Ask a question. Well friends, it's me, the great Indian bustard. I feel proud to be known as the great Indian bustard. I have more than 30 different names in various Indian languages. So till here, when we read the 2 to 3 lines of this lesson, we get an idea that in this chapter the Indian bustard is talking with us that the heaviest flying bird, जो बहुत ही भारी है और जो फ्लाई नहीं कर पाता है, उसे वो कौन है इस पूरे इंडिया में. एंड he only answers, the bird only answers about that friend, it's me, great Indian bustard. I feel proud to be known as the great Indian bustard. इसका मतलब प्राउड मीन्स बहुत ही उसे गर्व होता है ये सुनकर कि वही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. देन ही सेज आई हैव मोर दैन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. मतलब कि इंडिया एज अ नेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, उस देश में उसका अलग अलग नाम है अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से. एज इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और घूम. मतलब जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उसी लैंग्वेजेस के टर्म्स में इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलग अलग नेम्स हैं. So the different names in Marathi is known as Maldhok or Hum. When we talk about in Marathi, the great Indian bustard features, he can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher than that. इसका मतलब ये है कि मराठी में उसे मालढोक और हुम के नाम से जाना जाता है और वो 18 किलो का होता है उसका वेट, और वो जब खड़े होगा तो 4 फीट के हाइट का है, 4 फीट का है वो. एंड 4 फीट यानी कि नॉर्मल पर्सन के शोल्डर्स तक का, और इवन हायर दैन दैट, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है. नेक्स्ट व्हाट ही सेज, लेट्स रीड आउट. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड. उसने अपने खुद के फीचर्स के बारे में बताया है, जैसे कि लॉन्ग वाइट नेक है उसका, लॉन्ग वाइट नेक एंड ब्राउन विंग्स, as you can see in the pictures given, brown wings, long white neck, tall yellow legs and a black cap on my head, just a black cap on his head. So उसके बाद में about he talks is his wife. He says, my wife Mrs. Bustard is smaller and slimmer than him and her neck is not white, but I have heard humans say that we both look impressive. अभी इसमें क्या बोलने की उसने कोशिश की है कि the male bustard looks like I said about me, but the female bustard looks like her wife. Her wife has a smaller and slimmer body and her neck is not white. मतलब जो दूसरा जो फीमेल बस्टर्ड होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और पतले होते हैं. उनकी जो नेक होती है वो वाइट नहीं होती है. और उन्होंने ये सुना भी है कि ह्यूमंस, मतलब हम इंसान कहते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही इम्प्रेसिव लगते हैं. इम्प्रेसिव मीन्स अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षित. Next, the para says about, I live on grasslands and deserts along with my other friends including chinkara, blackbuck and larks. अभी grassland you can know, normal एक forest या फिर deserts. grasslands means forest, deserts मतलब जो सूखा पड़ा हुआ है उस जगह पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं. उनके फ्रेंड्स कौन कौन है? चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स. एंड ये तो पता चल गया कि उनके फ्रेंड्स के नाम क्या है. बट what do they eat? He says that he eat everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. यानी कि फल से लेके फ्रूट से लेके जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को खाते हैं. all small insects and small fruits they eat. Then that's a very healthy habit.
बट ग्रासहोपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। वो क्या बोलते हैं कि जो भी वो खाते हैं जैसे स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल फ्रूट्स को तो खाते ही हैं, वो सब उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैबिट होता है। एंड व्हेन दे टॉक अबाउट ग्रासहोपर्स एंड बीटल्स, दे बोथ आर देयर फेवरेट आइटम्स। मतलब बस्टर्ड के फेवरेट आइटम्स क्या होते हैं? ग्रासहोपर्स और बीटल्स। नेक्स्ट, when it starts raining, we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us and perform a wonderful dance by gulping in air in a special feathery pouch attached below its neck. अभी इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि जब बारिश होती है तो सारे बस्टर्ड्स एक साथ आते हैं अपने फेवरेट ग्रासलैंड्स में, मीन्स wherever in the forest they live, they come out from the hidden areas of the forest to the free area। वहाँ पे जब बारिश होती है तो इतने ज़्यादा पीपल यहाँ जाने की लोग नहीं होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, और वो अपना एक वंडरफुल डांस करते हैं। गल्पिंग एयर मीन्स उछल कर कूद कर उन हवाओं में हल्का सा एक डांस करते हैं अपने फेदरी पाउच को। फेदरी पाउच मतलब अपने विंग्स को ऐसा हिला के, अपने नेक्स को उठा के थोड़ा सा डांस करते हैं। एंड दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रीजनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ। जो उनका पाउच मतलब जो विंग्स हिलाते हैं उनके हिलने की आवाज़ कुछ काऊ के बोलने की आवाज़ की तरह होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट ही सेज नेक्स्ट। आई डांस एंजॉय विद पॉप्ड आउट फेदर्स एंड cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए जब बारिश होती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है और उसमें वो अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए इस तरीके से डांस करते हैं कि पफ्ड आउट फेदर्स, जो भी फेदर्स है वो पफ आउट होता है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे लहराते हैं, छोटे होते हैं इसलिए पफ्ड आउट लिखा है। कॉक्ड अप टेल, छोटी सी ही टेल होती है इसके लिए वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ड्रॉप डाउन विंग्स, द विंग्स गेट ड्रॉप डाउन इनटू द because they cannot fly. So now you know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother GIB lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nest. इसमें क्या कहा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मतलब जो भी बस्टर्ड्स होते हैं वो अपना खुद का नेस्ट बनाने में बिलीव नहीं करते। एंड व्हाट ही इज सेइंग अबाउट जो भी फीमेल बस्टर्ड्स होती है वो अपने एग्स को ले करते हैं ग्राउंड पे ही। And mother GIB lays just one egg directly. Mother GIB, mother gib, Great Indian Bustard। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर मतलब फीमेल बस्टर्ड होती हैं वो एक ही एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड पे देती हैं, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन इट। और वो अपने नेस्ट को नहीं बिल्ड करती हैं क्योंकि उनके पास एक ही एग होते हैं। एंड उसमें उन्होंने क्या बोला है, बट we have a special trick to protect our eggs from predators. You know what is predators? Predators मतलब जो किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, the one who consumes the other. The one who consumes their food insects. प्रेडेटर्स मतलब वो जो अपने आगे आने वाले के जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। अभी यहाँ पर देखा जा सकता है बस्टर्ड इज वन ऑफ द बर्ड्स दैट लार्जर इन केस ऑफ बर्ड्स, बट देर आर सम ऑफ द एनिमल्स हु आर नॉट लार्जर, हु आर नॉट एज स्मॉलर दैन द बस्टर्ड, एज स्मॉलर द अदर बर्ड्स, दे आर लार्जर दैन द बस्टर्ड्स एंड द बर्ड्स। तो उन्हें डर रहता है कि कोई भी प्रेडेटर आके उनके एग्स को थोड़ा सा भी नुकसान ना पहुंचे क्योंकि एक ही उनके पास एग होता है वन एट अ टाइम। दैट लुक्स लाइक अ स्टोन की तरह वो दिखता है, तो उनको वही डर रहता है कि कहीं अलग से वो पत्थर की तरह से समझकर उसे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। Now let's see the next one. Monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are enemies of my egg and chick, but my wife protects the egg from all of them. अब इसमें हमें पता चलता है कि कौन कौन प्रेडेटर्स हैं जिससे अपने एग को एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है वो अपने एग्स को बचाती है। मॉनिटर लिजर्ड्स को हम लोग को देखना पड़ता है कहीं वो कुछ नहीं ना कर दे। फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स, ईगल्स आर एनिमीज। नाउ बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, रेन्स अराइव। जब वो हैच करते हैं एग्स को उसी टाइम पे बारिश होती है। There's plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. मतलब उनके हैचिंग का टाइम ऐसा होता है कि उसके हैच करने के बाद में रेन्स का मानसून सीज़न होता है और उस मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रास होती है, इंसेक्ट्स भी होते हैं
तो फ्रेश फूड मिल जाते हैं उनकी फैमिली को. Young ones of their birds soon fly away from the nest, but a great Indian western mother and chicks stay together for nearly 1 year. जो नॉर्मल मेल बस्टर्ड्स होते हैं वो तो फ्लाई अवे, मतलब वो तो चले जाते हैं. नो इट इज़ रिटन एज यंग वंस ऑफ द अदर बर्ड्स. जो भी यंग वंस होते हैं दूसरे बर्ड्स के वो तो फ्लाई हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं कहीं और किसी और दिशा में चले जाते हैं. बट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो यंग वंस होते हैं, चिक्स होते हैं, उनके साथ ही रहते हैं 1 साल तक. 1 साल तक उनके साथ रहते हैं और फिर उन्हें इंडिपेंडेंटली खुला छोड़ा जाता है. द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसे सिखाई जाती है और फिर बाद में उसे छोड़ दिया जाता है इंडिपेंडेंट तरीके से जीने के लिए. यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स ऑफ आवर्स, डॉक्टर सलीम अली. सलीम अली को तो आप जानते ही होंगे कि वो कितने अच्छे बर्ड लवर हैं. या इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड. उन्होंने सजेस्ट किया था कि नेशनल बर्ड का स्टेटस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिले, ना कि पिकॉक्स को. इवन पिकॉक्स को दिया गया है एज इंडियन नेशनल बर्ड का उसे कहा गया है ना. बट ऑनर वेंट टू अवर ब्यूटीफुल रिलेटिव ऑफ पिकॉक. आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नेशनल बर्ड तो नहीं कहा गया बट स्टेट बर्ड बनाया गया है राजस्थान का. वी हैव गॉट 10 sanctuaries for our protection, but sadly our number is still growing now. We used to live in all parts of India, but slowly the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions. अभी इसमें क्या बोला गया है उनकी स्कैसिटी के बारे में, कितनी स्कैसिटी होती है, कितनी कम होते जा रहे हैं. उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 10 sanctuaries बनाए गए हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बट उनके नंबर्स अभी भी कम होते जा रहे हैं, वो बच नहीं रहे हैं. ग्रोइंग पॉपुलेशन को उन्होंने कम कर दिया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन कम होती जा रही है क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स में उनकी ही है पॉपुलेशन. वी आर ट्रेन्ड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन. वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी व्हाइल फ्लाइंग. We are losing our homes. Today only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये पूछ रहे हैं कि जो हंटर होते हैं अपने मज़े के लिए वो बर्ड्स को मार देते हैं, उनसे उन्हें डर लगता है. और एक पावर लाइन्स जो कि दिखते नहीं हैं नॉर्मली फ्लाई करते समय, उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, अपने घर को खो देते हैं वो. और आज की तारीख में सिर्फ 200 ही बचे हैं इस वर्ल्ड में. और इसमें कहा गया है वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव. कैन यू हेल्प अस? तो वो हमसे मदद मांग रहे हैं ना. यू कैन अभी यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू. यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड वी कैन अपील टू हेल्प अस. यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर. यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स. Come to see us. You will not see us in other places. And who knows, if humans don't help us, none of us will be left on the earth. You will only see us in pictures. उसमें कहा गया है, क्या सजेशन दिया है कि हमारे ड्राइंग्स करके हमारे जो चित्र हैं उसे बनाकर अपने टीचर्स को सबमिट करो टू डिस्प्ले, टू शो अदर्स टू नो अबाउट देम. और बोला गया है कि डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ हमारे बारे में जानने के लिए, हमारी सेंचुरी में हमें देखने के लिए आया करो, क्योंकि हम और कोई प्लेसेस में नहीं दिख सकते. और बोला है कि जो ह्यूमंस जानते हैं और हेल्प नहीं करते हैं, इससे क्या होगा कि हम सिर्फ आपको पिक्चर्स में ही दिखाई देंगे. सो अ ग्रेट अपील इन दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द बस्टर्ड्स. ग्रेट अपील इज सजेस्टेड इन दिस पैरा बाय द बस्टर्ड्स. इसमें स्कैर्सिटी के बारे में बताया कि वो स्कैर्स क्यों होते जा रहे हैं. इसमें बताया गया है कि सजेशंस क्या कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को अपने इंडिया, अपने कंट्री में उसे रिजर्व करने के लिए. So thank you for watching this video. I will be uploading more videos. Subscribe to my channel. Thank you. एक लीडर को ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके और ज़्यादा